ایک مہرنگ ہے، اس کا دل کا آواز نکلتا ہے، وہ مجبوری سب اس کے پیچھے ہیں۔ کسی جگہ آپ دیکھیں ڈانس کر رہے ہیں، یار یہ اسمبلی کا یہ ممبر ہے، ڈانس کر رہے ہیں بھائی۔ آپ اس وقت پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سر یہ آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا، آسمان سے گر کھجور لٹکے، کون اس کو روکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، البس ٹی وی کے ساتھ کئی ہوں بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے شخص کو بلایا ہے جو بیرون ملک رہتے ہیں، بلوچ ہیں اور پنجگور سے ان کا تعلق ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، اور وہ جب سے یہاں پہ آئے ہیں ملک کی حالات کو دیکھ کر، دہشت گردی کے واقعات کو دیکھ کر، یہاں ان ہڑتالوں اور دھرنوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں کہ میں اپنی دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو ہم نے ان کو بلایا ہے۔ شبیر جان، آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دبئی میں رہتے ہیں اور اکثر آپ کی زندگی باہر ملک میں گزری ہے، اور پچھلے مہینے آپ پاکستان آئے اور آپ نے کوئٹہ کے حالات بھی دیکھے، پنجگور بھی گئے، آپ کی وہاں ذمہ داری بھی ہے۔ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں اپنی دل کی بات کہوں گا؟ جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، آپ سب سے پہلے جو آدمی باہر سے آتے ہیں وہ اپنے خوشی کے ساتھ جی، کہ ہم جائیں اپنے ملک میں خوشی منائیں، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، زمینداروں کے ساتھ جڑوائیں۔ دیکھیں جس وقت میں پنجگور میں گیا، میں دیکھا اپنے گھر سے یہ لے کے یا باہر دیکھا لوگوں کے چہروں میں پریشانی ہے، خوف بھی ہے، بڑا خوف ہے۔ صحیح۔ ہم حیران ہے یار کیا خوف ہے؟ ہر جگہ دیکھے خوف سے اور کچھ نہیں ہے، پریشانی سے اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ میں نے کتنا فخر کیا کہ ہم جا رہے ہیں اپنے ملک میں، 2 دن 3 دن رہیں، ادھر خوشی بنائیں دوستوں کے ساتھ۔ میں نے بغیر پریشانی سے کچھ نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے دور تھا سپہ پوشوں کا استقبال تھا، جا کے اس کے بعد بیٹھتا تھا، اس کے بعد سنتا تھا، تسلیہ ہوتا تھا، وہ نصیحت بھی کرتے تھے۔ آج کے وقت صدر جا کے اس پہ پوش بالکل اتنا پریشانی کہ وہ رو رہا ہے، جو جانکار ہے وہ رو رہا ہے، صحیح۔ جو رونے سے اور پریشانی سے کچھ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں ایک بیٹا ہے وہ نافرمان ہے تھا، یا کسی چیز میں، ہر چیز میں نشہ ہو ملوث تھا، وہ باپ مجبور ہو کر اس کو گھر سے نکالا تھا کہ بھائی ہم تو ایک اچھے گھر کے مالک ہیں، اگر یہ ہمارے گھر میں رہیں سارے لوگ ہم لوگوں کو سے نفرت ہوگا۔ یہ نفرت کی بنیاد وہ اپنے گھر سے اس کو نکالا۔ نکالنے کے بعد وہ دوسرا سب جانتے کون ہے، اس کو اپنے پاس رکھا، اس کو ویگو گاڑی دیا، ہر کس کے سہولت بھی دیا، اس کو بھی بارڈر کا وہ بھی ایک بتاخا دیا تھا، بھائی جاؤ کسی آپ کو نہیں روکے گا، سمجھنی کرو، جو کرو بس، پھر یہ جدھر جائے گا وہ روکنے والا نہیں ہے، منشیات لاؤ لے جاؤ، جو بھی کرو۔ اچھا، باقی اس کے پاس پیسہ ہوگا، یہ ہوگا، اس کو بھی یہ کرا کہ بھائی یہ فیصلہ بھی یہی کرے گا، 2 آدمی کا جھگڑا ہوگا، فیصلہ بھی یہ کرو، وہ مفتی کو مجبور کرے گا، بھائی معتبر وہی بنے گا، پیسے جس کے پاس ہے، پیسہ بھی ہے، سب ہے، وہ مفتی بھی مجبور ہے، اگر نہیں جائے گا وہ بھی خوف ہے، وہ بھی اس کے پاس جائے گا، وہ بھائی فیصلہ بھی کرائے گا۔ اس وجہ سے وہ چھوٹے نسل سمجھدار ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نفرتیں بڑھ رہے ہیں، سپہ پوش کا نفرتیں بڑھ رہے ہیں، اچھے لوگوں کا نفرت بڑھ رہے ہیں۔ یہی نفرت نے ملک کو
तबाह बर्बाद किया है। और नफरत से और कुछ नहीं हो, परेशानी से कुछ नहीं है। अभी क्या हाल हो गया, मुल्क का क्या हाल हो गया, आप खुद समझते हैं कि नफरत से एक महारंग है, उसका दिल का आवाज निकलता है, वो मजबूरी सब उसके पीछे है और कुछ नहीं है। सही। लीडरों ने इसको नहीं रोका है कि उसका हक था भाई, ये किचरा लोग बाहर निकलते, क्यों उसको पास गाड़ी है, क्यों फैसला करने वाले, ये लीडरों का हक था। लीडरों ने अपने खामोश किया है भाई, वो भी उसका फरमाबरदार है, लीडर भी उसका फरमाबरदार है। लीडर को भी पैसे चाहिए, और पैसा चाहिए, उसने वो भी कामयाब करने वाला लीडर को वही है नहीं, वो लीडर खामोश हो गया। इसके वजह से मुल्क का हालत ये है कि 90% समझ गया, अभी कौन उसको रोकेगा। अच्छा, हमारे मुल्क के जो लीडर थे पहले, जी जो बड़े बड़े लीडर थे, जी अताउल्ला मेंगल था, खौस बख्श बिजंजो था, ठीक है ना, इसी नवाब बुगटी था, नवाब मरी था। जी जी उस ज़माने में एक पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी है, फिर वो बन गई है, फिर यहीं से भी पंजगूर से भी बड़े नामवर लोग आ गए, जी जी ठीक है ना। लेकिन उनके जाने के बाद हालात कैसे देखते हैं आप? सर, हालत ये था कि पहले मैं आपको यही बताया था कि पहले सफेद पोशों का कदर था, अच्छे लोगों का कदर था, वो फैसला करने वाला यही था। सही। सफेद पोश था, अच्छे लोग था नहीं। और बाकी इस अच्छाई की वजह से अगर जो हमारे जो लूटा थे, जो साहिल वसा लूटा था, वो बेचारा खामोश थे, सही। क्योंकि वो तसल्ली देता था बेचारों को, परेशानी से वो दूर करता था। अभी ये है कि गुर्बत से आगे सायरे आएंगे। किस वजह से हमें गुर्बत है, खुदा के साथ। कल एक आदमी नहीं थे, छोटा बच्चा, जी, आपने खुद देखा था, उसके पास चप्पली था, नहीं था, कपड़ा था, नहीं, उसका फटे हुए पुराने। वो पहाड़ में रहते हैं, वो भूख की वजह से उसके आंखें गया, रात को नहीं देखता है। मैंने उसको क्वेटा लेके आते इलाज के लिए। सही। यार इतना साल वसाल के बच्चा छोटा, आपने खुद देखा है, भूख से उसके आंखें गया है, सही। रात को नहीं देखता है। मैंने उसको उधर दाखिला दिया वेटसम स्कूल में, वो 3 महीने मैंने दाखिला दिया है, वो कंप्यूटर में नंबर 1 आया। यानी इतना ज़हीन पहाड़ में रहने वाला बच्चा, उसका भूख से आंखें भी गया है। हाँ हाँ हाँ, आपने खुद देखा, मैंने आपको दिखाया है। सही। अच्छा, मतलब ये है कि जो करेगा उसका वो रिजल्ट निकलेगा, जो करते हैं जिसका रिजल्ट वही निकलता है। अच्छा ही करेगा वो अच्छा ही निकलता है। वो बुराई है कि बुराई से ये मुल्क का क्या हालत है। खुदा की कसम, मैं अभी मुल्क से आ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ कि मैं आया था यार, खुशी बनाऊँ, पिकनिक कराऊँ, साथ एस पी पोस्ट के पास जाऊँ, उसको मुझे नसीहत करे, मुल्क के हवाले उसको देखे। वो रो रहा है, खुद हालत को देखे। पंजगूर के जो लोग हैं वो हर जगह जाए, जो सी पी पोस्ट हैं, वो जो दानश्वर है, तजिया नगार है, अच्छे लीडर है, वो रो रहे हैं। अच्छे लोग खुदकुशी पर मजबूर की हालत को देख रहे हैं। अच्छा, शबीर सुल्तान साहब, आपका ताल्लुक पंजगूर से है जी और आज सोशल मीडिया पे भी आपने देखा, वो चल रहा था, आपके पंजगूर का लीडर मीर असदुल्ला बलोच जी और उधर से दूसरा सूबाई वजीर जी जी अली मदद जत्तक, जी जी ये जो असेंबली में झगड़ा और एक दूसरे को गाली गलोच, इसको किस तरह आप देखते हैं? मकसद ये है कि इधर अवामी काम असेंबली में नहीं है। आप जाके सेक्रेटरीट में जाए, ये वजीरों का ये टेबल खाली है, कुछ एक फाइल भी टिश्यू पेपर नहीं है। सही। क्योंकि जो होगा टेलीफोनी रब्ता, भाई कितना ले लो, इतना आया, बस मुतमैन है। क्योंकि इस वजह से सारे भूखे हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं। अवामी नुमाइंदे और असेंबली में आप खुद इस तरह आप खुद इस तरह हैं, बदअखलाक है। ये बात बदअखलाकी, सही। वो नीचे से वो सारे उम्मीद है, बलूच कौम का उम्मीद यही है कि हम इससे तालीम सीखेंगे, अखलाक सीखेंगे। यानी आवाम की उम्मीद यही है, उम्मीद यही है कि हमारे जो साइल वसाइल का बचाने वाला यही है, लीडर है। और हमारे मुल्क में जो तरक्की आएगा, वो वशाली आएगा, रोजगार देगा, वही है। सही। किसी जगह आप देखे डांस कर रहे हैं, यार ये असेंबली का ये मेंबर है, डांस कर रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। वजीर है भाई, शादी बीगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना यार। आप क्या कौम आपसे क्या सीखेगा, क्या उसका। यार मैं आया, खुदा की कसम, वो दुनिया
यार खुदा, हम किससे हम अपने को बच्चों को पढ़ा देते हैं, वो क्या बनेगा? वो वक्त जो नशे करता है, मनशियात पुरुष है, जो चोर है, उसको असेंबली में भेज देता है। चोरों को भाई, अच्छे लोगों को वो मारने के लिए वो अच्छे लोग बाजार नहीं घूमते, कुछ मुझे मारे खौफ से, इसमें कुछ बाजार नहीं चाहिए, खौफ से कि ये जो ताकतवर का वक्त है, जिसके पास पैसा है, सब वही है, फैसला करने वही है, बुजुर्ग वही है, मौलाना वही है, उसके पास पैसा है, सब अपने रिश्तेदार उसको बनाता है कि भी ये हमारा रिश्तेदार है। यार ये हालत किसने पैदा किया है? इस रोकने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सारे खामोश हैं। अब क्या करना चाहिए, चूंकि आप बैरूनी मुल्क रहते हैं, वहाँ से भी आप देखते हैं, सुनते हैं, और आपने बहुत से ममालिक का दौरा भी किया है। जी जी। आप इस वक्त पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? सर ये आसमान से गिरा खजूर में लटका, आसमान से गिरा खजूर लटके, कौन उसको रोकेगा? सही भाई ये है कि मुल्क के अजब मुल्क के वो कर्जों पे, उम्मीद कर्जों पर है। भाई कर्ज ले ले, वो कर्ज अपने दूसरे कर्ज में देगा, कर्ज के वो देगा, यानी कर्ज का सूद देने के लिए भी कर्ज लेकर सूद देगा। और बाकी दुनिया अगर बाहर जाए, वो अपने मुल्क की हालत देख के ज़्यादा परेशान होगा। जो रहते हैं वो इतना परेशानी वो रो रहे हैं। बाकी जो बाहर है, हम देखते हैं कि हम मजदूरी करते हैं, ये पैसा मुल्क के लिए भेज देते हैं, मुल्क का साइल वसाइल, मुल्क का भाई ये डॉलर होगा, मुल्क का मईशत आगे हो जाएगा। हम मजदूर कर, हमारे ये सोचिए कि हम ये नहीं कहते हम बच्चों के लिए भेज देते हैं, हम मुल्क के लिए भेजते हैं। ज़रूरी मुबादला होगा, मुल्क के लिए अच्छा होगा। बांग्लादेश जाए, पूरा 90% इमारत का बांग्लादेशी लोग बिजनेसमैन भी है, कारोबारी भी लोग हैं, बड़े काम वाले अभी बांग्लादेश का है। हालांकि अगर आप देखें उधर सरमाकार है जो भी है अक्सर पाकिस्तान के। अच्छा, आप दुबई में रहते हैं और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सारी मादनियात दी हैं, हर चीज़ दी है, 4 मौसम दिए। दुबई का एक ही मौसम है जी। उसकी आमदन क्या है, कितना खुशहाल है? उसका आमदन यही है कि अमन अमान है। अमन अमान वो चीज़ें, अगर घर में अमन अमान होगा, फाइट होगा, वो घर का रिस्क भी जाएगा, वो घर में खाने के लिए मोहताज होगा। एक घर हो, ये मुल्क कैसे चलेगा? उसमें अमन अमान है, एहतराम है, रिस्पॉन्स है। वो नहीं जानता है भाई ये कौन से मुल्क है, सूडान है, 300 मुल्क। अगर आप एयरपोर्ट में जाएं, 300 कौम एक ही दिन में एयरपोर्ट में निकलता है। कोई नहीं बताएगा भाई ये सूडान का है, ये कैसा मुल्क है, ये कैसा कौम है, ये कौम है, ये कौम है। सिर्फ हमारा बदबख्ती है कि हम अपने मुल्क के आदमी को हम तकसीम है। उधर मिस्र के लोग हज़ारों कबीला है, वो कभी हमने नहीं सर उसके ज़ुबान में वो कौन सा कबीला है, ये कौन सा कबीला है। वो किताब मिस्र का है, मिस्री हो, सूडानी हो, ये हो। हमारे इधर तकसीम करने वाला, पहले मैंने बताए थे, इलेक्शन की खातिर, वजारत की खातिर तकसीम किया है, वो उसका कसूर है, उसने तकसीम किया है। ये हालत पैदा हो रहा है हमारे लिए। कोशिश करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, सब एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तासुब बंद करें, और जो करता था उसका फसल अभी मिल रहा है। वो जो करता था वही वो फसल मिल रहा है उसको। मसलन इंसाफ चाहिए, ठीक है ना? लोगों को जब आप इंसाफ देंगे, जब लोगों को इज्जत और एहतराम देंगे, जब जिसका हक है वो उसको हक देंगे तो फिर खुशहाली आएगी। शबीर सुल्तान बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, अपनी दिल की बात की, और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान शबीर सुल्तान बलोच साहब की बातें सुनी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, और अपने मुल्क के हालात देखकर उन्होंने कहा कि मेरा जो दिल है वो खून के आंसू रोता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे
ملک میں امن ہو، خوشحالی ہو، اور ادھر میں آیا ہوں کہ اپنے وطن میں جاؤں، اپنے لوگوں سے ملوں، خوشحال رہوں، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر میں مایوس ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ ملک ترقی کرے، اب میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔